Good evening, students. We are going to start as we have started with our chapter third, metals and non-metals. We have already studied in the previous lecture the physical properties of metals and non-metals. Hope that topic is clear to you. आप सबने notes लिखे होंगे proper उसके notebook में, ठीक है? So next we are going to start with the chemical properties of metal. So what is the chemical properties of metals? What are chemical properties? As you know, chemical properties means the reaction occurring to form a new product. So metals are electropositive elements. So in chemical reaction, metal loses electrons to form positively charged ions. The reactivity of metals depends upon its nature and the reaction condition. Now when I am talking about its nature and reaction condition means I am talking about the reactivity of the metal. So the reactivity series of metal, you know, you have already studied in the first chapter. ये आपको याद रखना है बहुत अच्छे से क्योंकि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी आपको बहुत ज़रूरी है, ठीक है. पोटेशियम इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल एंड गोल्ड इज द लीस्ट रिएक्टिव मेटल. डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी डिक्रीजेस. नेक्स्ट, हाउ टू रिमेंबर दिस रिएक्टिविटी सीरीज? यू कैन सी ओवर हियर इन दिस स्लाइड. Please stop calling me careless zebra. Instead, try learning how copper saves gold. So this is the trick to remember. If you want to, if you can innovate some new trick also, then also you can share it with me. So this is my trick to remember, given to you how to remember it. Okay. Next, first, how do metals react with oxygen? So let us start. First chemical property, how do metals react with oxygen? So metal reacts with oxygen to form metal oxides. So metal plus oxygen gives you metal oxide. This is a general reaction. The reactivity of metal towards oxygen depends upon its nature. As you can see in the reactivity series, it purely depends upon its nature. So as you can see, sodium and potassium in the reactivity series are at the top. So they can easily react at room temperature. उसको किसी भी बर्निंग प्रोसेस की ज़रूरत नहीं है, कोई एनर्जी की ज़रूरत नहीं है. उसके पास खुद के पास इतनी इनफ एनर्जी होती है कि वो तुरंत रिएक्ट कर देता है. जैसे फर्स्ट डे स्कूल का जाना, अभी जैसे आप में एनर्जी घर पे, जैसे फर्स्ट डे लॉकडाउन खुलेगा और आपका स्कूल चालू होगा तो आप में कितनी एनर्जी होगी. यू विल बी वेरी एक्साइटेड टू गो फर्स्ट डे एट द स्कूल और फर्स्ट डे एट द कोचिंग क्लासेस. ओके, बट वंस इट अगेन गेट्स रेगुलर, योर ऑल एनर्जी विल बी गेटेड वेस्ट. सेम वे ओवर हियर यू कैन सी, जैसे जैसे डाउन द ग्रुप आता है, दिन घटते रहते हैं, तो उसकी रिएक्टिविटी सीरीज भी क्या हो रही है, कम हो रही है. तो एज फर्स्ट डे आप में एनर्जी रहेगी, वैसे ही पोटेशियम और सोडियम की एनर्जी हमेशा रहती है. आप में एनर्जी कम हो जाती है बट सोडियम और पोटेशियम की एनर्जी कम नहीं होती है. तो सोडियम एंड पोटेशियम आर द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स. सो दे रिएक्ट इवन एट रूम टेम्परेचर. अगर मैंने सोडियम मेटल ओपन एटमॉस्फेयर में रखा, पोटेशियम मेटल ओपन एटमॉस्फेयर में रखा रूम टेम्परेचर में, तो भी वो आपके रूम टेम्परेचर में जितना ऑक्सीजन है उतना उसके लिए बहुत है और वो उसके साथ कंबाइन करेगा और एक्सप्लोड करेगा और फायर ईजिली कैच करेगा. सो दैट इज़ वाई सोडियम एंड पोटेशियम्स आर नेवर केप्ट ओपन इन एटमॉस्फेयर. दे आर ऑलवेज केप्ट immersed. Same, the reactivity of metals toward oxygen depends upon its nature. So sodium and potassium are never kept in open. They easily catch. They should never be kept open because they easily catch fire. So therefore sodium and potassium are kept immersed under kerosene. So they ask you question कि why sodium and potassium are never kept open. They are kept immersed under kerosene. So that is why they should be kept immersed under kerosene. Okay. Now next is magnesium. How does magnesium react? Magnesium को रिबन लेंगे, वो रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट नहीं करेगा. अगर मैंने मैग्नीशियम रिबन या मैग्नीशियम मेटल लिया और उसको रख दिया रूम टेम्परेचर में, खुला रख दिया क्लास में, तो वो रिएक्ट नहीं करेगा बिकॉज इट रिक्वायर्स एक्सटर्नल एनर्जी. आपने रिएक्टिविटी सीरीज अगर ऑब्जर्व करोगे तो थोड़ा उसका एनर्जी अब वो 5th या 6th डे पे आ गया. जैसे मैंने आपको बोला, आपके स्कूल जाते हो तो फर्स्ट डे एनर्जी बहुत अच्छी रहती है बट नेक्स्ट जैसे जैसे आ रहे हो तो 4th डे आ गया, मतलब 4th है मैग्नीशियम, तो उसकी एनर्जी कम हो गई है, वो रूम टेम्परेचर पर रिएक्ट नहीं करेगा. सो इट रिएक्ट्स, magnesium reacts by burning process, okay, in the presence of oxygen with a white dazzling flame. ये आपका मैंने फर्स्ट चैप्टर एक्टिविटी में भी डिस्कस किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. हाउ डज मैग्नीशियम बर्न्स एंड व्हाट डज इट फॉर्म्स? मैग्नीशियम बर्न्स विद अ वाइट डेजलिंग फ्लेम. और आपको ये भी पढ़ा है आपने कि मैग्नीशियम रिबन थोड़ा सा रिएक्टिव है तो एटमॉस्फेयर में रिएक्ट कर जाता है, इसलिए हमें उसको क्या करना पड़ता है, रब करना पड़ता है, फिर बर्न करना पड़ता है. ठीक है, क्लियर है? ओके. नाउ नेक्स्ट you can see
यहाँ पे मैंने आपको स्लाइड दिखाई है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि रिएक्शन ऑफ सोडियम विथ ऑक्सीजन। सोडियम मेटल रखा था मैंने, सोडियम मेटल की पिक्चर मैंने आपको इसके पहले वाले स्लाइड में दिखाई है। इट कैन ईजिली बी कट विथ अ नाइफ प्रीवियस वीडियो लेक्चर में। ओके, सो सोडियम मेटल को रखा था, ओपन रखा था एक ग्लास ट्रे में लैब में। तो देखो कैसे फायर कैच कर रहा है ईजिली विथ अ गोल्डन फ्लेम, यू कैन ईजिली सी ओवर हियर। ठीक है, सो ऐसे ही वो बर्न होता है। नेक्स्ट, दिस आर द डिफरेंट फ्लेम कलर्स विथ व्हेन इट बर्न्स, विथ डिफरेंट मेटल बर्न्स, what type of colored flame you can observe, you can see over here. पोटेशियम बर्न होगा तो समविच पिंकिश कलर का फ्लेम आएगा, सोडियम बर्न होगा तो येलो गोल्डन, येलो और यू कैन से गोल्डन फ्लेम आएगा, लिथियम बर्न होगा तो रेडिश फ्लेम आएगा, कैल्शियम ऑरेंज थोड़ा फ्लेम देगा, कॉपर ग्रीन स्टार्टिंग में देगा, बट एक बार अगर जलता जाएगा जलता जाएगा जलता जाएगा तो वो आपको क्या करेगा, ब्लैक कलर का ऑक्साइड देना स्टार्ट करेगा। ठीक है, सो डिफरेंट फ्लेम बर्न्स विथ डिफरेंट कलर्स, सो यू कैन सी ओवर हियर। नेक्स्ट, मैग्नीशियम रिबन का जैसे बर्न किया विद अ वाइट डेजलिंग फ्लेम, आप इजीली देख सकते हो एक वाइट डेजलिंग फ्लेम जैसा यहाँ पे बन रहा है। सो मैग्नीशियम का रिएक्टिंग रिबन लिया, उसको एक स्टैंड से ऐसे पुट आउट किया टेस्ट ट्यूब में, ऑक्सीजन गैस पास किया और हीट किया थोड़ा, तो कितने अच्छे से वाइट फ्लेम दे रहा है, वाइटिश कलर का स्पार्कल डेजलिंग फ्लेम आपको दिखेगा। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको दिखाती हूँ, देखो ऐसा magnesium ribbon burns with a very good this type of dazzling flame you can observe. ठीक है, so remember how does magnesium ribbon burns. Okay, next metal zinc reacts with oxygen only on strong heating. अब ऐसा नहीं है कि आप उसको तुरंत जिंक लिया और आपने उसको हीट किया तो कुछ नहीं होगा, तुरंत नहीं हीट करेंगे तो तुरंत रिएक्शन नहीं देखेगा। जैसे मैग्नीशियम रिबन आप उसको लिया और अपने जैसे ही बर्नर के पास रखा वो मस्त वाइट डेजलिंग फ्लेम के साथ बर्न होना स्टार्ट करेगा, बट जिंक नहीं, जिंक को थोड़ा स्ट्रॉन्ग हीटिंग चाहिए, मतलब सर्टेन मोमेंट ऑफ टाइम जब वो अच्छे से हीट अप हो गया तब वो रिएक्शन शो करेगा। एंड जिंक बर्न्स जिंक बर्न्स विथ अ ब्लू फ्लेम। जिंक कौन से फ्लेम से बर्न हो रहा है आपका, ये ब्लू फ्लेम से बर्न हो रहा है व्हेन हीटिंग स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। व्हाट इट फॉर्म, जिंक ऑक्साइड। सो दिस इज द रिएक्शन ओवर हियर, जिंक बर्न्स टू फॉर्म जिंक ऑक्साइड। ओके, कॉपर रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन स्लोली ओनली ऑन प्रोलॉन्ग स्ट्रॉन्ग हीटिंग। सेम वे कॉपर का मैंने आपको बोला उसको बहुत हीट करना पड़ेगा तब जाके वो रिएक्शन शो करेगा ऑक्सीजन के साथ। तो व्हाट डज कॉपर फॉर्म्स, कॉपर फॉर्म्स कॉपर ऑक्साइड, एज यू कैन सी कॉपर प्लस O2 गिव्स यू कॉपर ऑक्साइड। ओके, नेक्स्ट, एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अगेन ये भी नीचे जा रहे हो रिएक्टिव तो उसको और हीट करना पड़ेगा, तो एल्यूमिनियम क्या देगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, दैट इज 4Al + 3O2 गिव्स यू Al2O3। ओके, नेक्स्ट स्लाइड, व्हाट इज द नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड्स। अभी मेटल ऑक्साइड्स पढ़ा, समझ में आया, मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू मेटल ऑक्साइड ऑन रिएक्शन। वो रिएक्शंस आपको सबको याद रखने, एग्जाम में कंप्लीट द रिएक्शन पूछा जाता है या फिर इस फॉर्म में पूछा जाएगा, व्हाट हैपेंस व्हेन पोटेशियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन। रिएक्शन आपको कंप्लीट लिखना पड़ेगा बैलेंस के साथ। बैलेंसिंग मैंने आपके टेस्ट पेपर्स चेक किए तो बैलेंसिंग में थोड़ा सा बहुत स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो रहा है, तो प्लीज़ उसको अच्छे से गो थ्रू करो। ओके, नेक्स्ट, बैलेंसिंग के लिए वैलेंसी टेबल अच्छे से याद होना चाहिए एवरी स्टूडेंट्स टू मेक द फॉर्मूला। ओके, चलो नेक्स्ट, व्हाट इज द नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड्स। मेटल ऑक्साइड्स आर समवॉट बेसिक और एम्फोटेरिक इन नेचर। Amphoteric depending upon the nature of the metal. Now what do you mean by this word amphoteric? Again a new word for you. Okay, नीचे मैंने definition bold letters में लिखा है, अगर आप देख सकते हो obviously देख सकते हो, if you are not in the sleeping condition, so get up. So metal oxides reacts basic or amphoteric depending upon the nature of the metal. So the oxides of metals such as sodium, potassium, calcium, magnesium etc. are basic in nature. ये जो metals है आपके, metals like sodium, potassium and magnesium, they are basic in nature. Okay, they are somewhat basic in nature. And the oxides such as aluminium, zinc and are amphoteric in nature. These two are amphoteric. Now what is amphoteric? This is the definition of amphoteric. Amphoteric oxides. Some metal oxides shows both acidic as well as basic character. कुछ metal oxides आपको acidic character भी show करते हैं, basic character भी show करते हैं, उनको बोला जाता है amphoteric oxide. Again very important definitions exam में पूछा जाता है and आपको different oxides दे देंगे, जैसे MgO, CaO, then KO, K2O,
Na2O, और आपको पूछेंगे कौन सा एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, तो उसमें से एम्फोटेरिक कौन सा है आपका ZnO और Al2O3, बिकॉज दिस आर द टू एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स जो आपको एसिडिक कैरेक्टर भी शो करते हैं, कभी कभी बेसिक कैरेक्टर भी शो करते हैं. कैसे शो करते हैं वो हम नेक्स्ट स्लाइड में अभी देखेंगे. ठीक है, सो रिमेंबर, डेफिनेशन नोट डाउन करना. नेक्स्ट, reaction of amphoteric oxides with acid and base. So when acids react, एसिडिक कैरेक्टर ऑफ जिंक, एसिडिक कैरेक्टर कब शो करेगा जिंक ऑक्साइड, जब वो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा. तो आप यहाँ पे रिएक्शन देख सकते हो, एसिड के साथ उसका रिएक्शन ZnO प्लस HCl गिव्स यू ZnCl2 प्लस H2O. ठीक है, तो मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड गिव्स यू सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस. बेसिक कैरेक्टर कब शो करेगा, जब जिंक ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्ट करेगा. तो मैंने बेस क्या लिया है यहाँ पे, आई हैव टेकन द बेस ओवर हियर. एज यू कैन सी व्हाट इज द बेस ओवर हियर. I have taken base, for example, base over here is your sodium hydroxide. You can see the base over here is sodium hydroxide. वो क्या दे रहा है, सोडियम जिंकेट. रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछते हैं ये वाला और ये वाला रिएक्शन ये इन शॉर्ट जनरल ये पूरा ही रिएक्शन पूछा जाता है आपको. ठीक है, सो व्हेन जिंक ऑक्साइड रिएक्ट विथ NaOH इट फॉर्म्स सोडियम जिंकेट Na2ZnO2 प्लस H2. ओके, रिमेंबर दैट. नाउ व्हेन डू एल्यूमिनियम ऑक्साइड शो एसिडिक कैरेक्टर, सेम वे जब वो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस HCl गिव्स यू AlCl3 प्लस H2. व्हेन इट शोज बेसिक कैरेक्टर, व्हेन इट रिएक्ट्स विथ बेस, फॉर एग्जाम्पल दैट इज दिस वन, Al2O3 प्लस NaOH गिव्स यू 2NaAl2O3 प्लस H2. दैट इज नोन एज सोडियम एल्यूमिनेट. क्या बोला जाता है उसको, सोडियम एल्यूमिनेट. इसको क्या बोलते हैं, सोडियम जिंकेट. दिस रिएक्शन यू शुड मेमोराइज. हाँ, भूलना नहीं है आपको ये रिएक्शन. सो इज दिस क्लियर टू यू एवरीवन, ये पूरा आपको रिएक्शन क्लियर है. रिएक्शंस प्लीज रिमेमोराइज करना, याद करना बहुत ज़रूरी है. ओके, नेक्स्ट, सो मोस्ट मेटल ऑक्साइड्स आर इनसोल्यूबल इन वाटर. अगर आप मेटल ऑक्साइड्स को देखोगे तो मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड्स आर इनसोल्यूबल इन वाटर, बट सम ऑफ दिस डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म अल्कलाइज. नाउ अगेन अ न्यू वर्ड, अल्कलाइज. नो, नॉट अ न्यू वर्ड, आई थिंक सो. वी हैव स्टडीड दिस इन आवर चैप्टर 2, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट. रिमेंबर करो क्या है अल्कलाई. अभी अगर सामने पढ़ रही होती है तो पक्का पूछती सबसे, और एक एक को पढ़ती अगर याद नहीं होता तो अभी नहीं है तो फिर यहाँ पे देख लो, मैंने डेफिनेशन लिखा है आप लोगों के लिए कि व्हाट इज़ एन अल्कलाई. आई नो मेजॉरिटी ऑफ यू डोंट रिमेंबर व्हाट इज़ एन अल्कलाई. सो व्हाट इज़ एन अल्कलाई. एन अल्कलाई इज अ substance which produce hydroxide ions when dissolved in water. ठीक है, तो अल्कलाई क्या होता है, कुछ ऑक्साइड्स होते हैं जैसे सोडियम ऑक्साइड्स, पोटेशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड्स. जब हम उनको दिखते वो ऑक्साइड है. अब मैंने बोला सोडियम ऑक्साइड इज अ बेस. अब बेस का डेफिनेशन तो मैम आपने ये पढ़ाया था कि बेस आर द वन विच कंटेन्स OH माइनस. तो हम कैसे बोल सकते हैं कि सोडियम ऑक्साइड बेस है, कैसे बोल सकते हैं गधो. सोडियम ऑक्साइड को जब पानी में डालोगे तो क्या देगा वो आपको, हाइड्रोक्साइड फॉर्म करेगा, हाइड्रोनियम आयन फॉर्म करेगा, इसलिए हम उसको बेस बोलते हैं. तो यू कैन से all alkali are bases. So this statement can be given that all alkali are bases, but all bases are not alkali. सारे अल्कलाई बेस हैं क्योंकि वो हाइड्रोक्साइड बना रहे, डिजोल्व करे तभी तो अल्कलाई है ना, बेस बना रहे तभी उनको अल्कलाई बोला जा रहा है. बट सारे बेस अल्कलाई नहीं है क्योंकि सारे बेस डिजोल्व करके नहीं बनाए जाते. समझ में आया, ठीक है. सो अल्कलाइज is a substance which produce hydroxide ions when dissolved in water. For example, sodium oxides when reacted with water it forms your sodium hydroxide. ठीक है. So other examples are sodium potassium oxides and calcium oxide. दूसरा कौन सा examples है, potassium oxides and calcium oxides. Okay, so remember it. Next, रिएक्शन. सेकेंड, पहला हमने क्या देखा था, रिएक्शन विथ एयर. नाउ नेक्स्ट इज रिएक्शंस ऑफ मेटल्स विथ वाटर. नाउ हाउ डू एल्यूमिनियम, यू कैन सी ओवर दिस इज सर्टेन एलिमेंट्स दिखाए आपको कैसे वो रिएक्ट करते हैं. अब हम वो देखते हैं. फर्स्ट, what happens when metals react with water? So when metals react with water it forms metal oxides and hydrogen gas. ठीक है. And as we have studied in the previous slide itself कि some of the metal oxide dissolved in water to form metal hydroxide. तो क्या होगा,
वो मेटल जब पानी के साथ रिएक्ट करेगा वो मेटल हाइड्रोक्साइड तो बनाएगा, बट अगर वो पानी में सोल्यूबल है तो डायरेक्टली क्या बना देगा आपका मेटल हाइड्रोक्साइड, ठीक है, डायरेक्टली। और अगर वो डिसॉल्व नहीं होंगे तो वो सिंपल क्या बनाएंगे आपके, सिंपल आपका यही वाला रिएक्शन होगा, दैट इज योर फर्स्ट रिएक्शन दैट इज गोइंग टू टेक प्लेस, ओनली दिस फर्स्ट रिएक्शन, ओके। तो certain are possible, certain are not. So let us see how does it reacts. Pay attention over here. So metal oxides that are soluble in water is all we need to know further for metal hydroxide, but all metals do not react with water. Now next slide में देखो, different metals react with water at different condition. मैंने आपको यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में करके दिया है ताकि आपको आसानी हो। इस साल के बोर्ड पेपर में ये वाला क्वेश्चन आया था, दैट इज़ फॉर 3 मार्क्स, कि गिव इन द टेबुलर कॉलम कि हाउ डज द मेटल सर्टेन मेटल्स रिएक्ट विद दिस। सो ऐसे टेबुलर फॉर्म में उनको रिप्रेजेंट करना था, वेरी इजी, पे अटेंशन। सोडियम, एज यू नो सोडियम एंड पोटेशियम आर द रिएक्टिव मेटल, तो वो आपके कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर जाएगा, ठीक है। कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करके तुरंत हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा। रिएक्शन यहाँ पे एज लिखे हुए हैं, क्योंकि सोडियम और पोटेशियम अल्कलाइज है, वो ऑक्साइड बनाएंगे और वो ऑक्साइड क्या करेगा, पानी में डिसॉल्व हो जाएगा इजीली। तो वो क्या बनाएगा, सोडियम प्लस H2O गिव्स यू NaOH प्लस H2O। सोडियम इन द सॉलिड स्टेट, दिस इज लिक्विड स्टेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड कौन से स्टेट में आ जाएगा, एक्वस स्टेट, और हाइड्रोजन कौन से स्टेट में आ जाएगा, गैसियस स्टेट, ओके। नेक्स्ट पोटेशियम, सेम वे इट रिएक्ट्स विद कोल्ड वाटर विग्रसली विथ हाइड्रोजन गैस। अब ये जब रिएक्ट करते हैं बहुत विग्रस कंडीशन है, तुरंत ऐसे पानी में डालोगे ना, सोडियम मेटल लोगे और पानी में डालोगे, तुरंत एक्सप्लोजिव जैसा होगा, बहुत विग्रस रिएक्शन है, तो इसका जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है वो एक्सप्लोजिव हो सकता है, ठीक है, वो फायर कैच कर सकता है ईजिली। सो ये रिएक्शन बहुत ध्यान से करना पड़ता है, अंडर सुपरविजन, आप लोग को नहीं कराया जाएगा, ठीक है। नाउ कैल्शियम रिएक्ट्स लेस वॉयलेंट एज कम्पेयर टू सोडियम एंड पोटेशियम। कैल्शियम भी कोल्ड वाटर के साथ ही रिएक्ट करता है, बट वो लेस वॉयलेंटली अटैक करता है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम। रिएक्शन इज क्लियर टू यू, कैल्शियम प्लस 2H2O गिव्स यू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखना कि जब आप ऑब्जर्व करोगे, ये प्रैक्टिकल जब होगा करवा के देंगे तो, ठीक है, मैं आपको इसका वीडियो भी भेजूंगी। तो कैल्शियम जब पानी में डालोगे, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करोगे, तो वो जब रिएक्शन करेगा तो उसका जो कैल्शियम मेटल है वो धीरे धीरे हाइड्रोजन गैस के साथ ऊपर आ जाएगा और आपके टेस्ट ट्यूब के वॉल में आके कलेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो फ्लोट करता है, इट इज़ लाइट इन कंडीशन, तो वो हाइड्रोजन गैस के साथ ऊपर ईजिली आके फ्लोट करना स्टार्ट करेगा, ओके। नेक्स्ट मेटल मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर, ठीक है। सो अगर मैंने आपको दिया कि मैग्नीशियम रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर, मैंने बोला लो मैग्नीशियम रिबन लो और इसको ठंडे पानी में डालो, क्या रिएक्शन होगा? नहीं होगा। अगर आपने मुझे बोला ना रिएक्शन होगा तो गलत है, ठीक है, रॉन्ग मिलेगा आपको। आपको लिखना है, जब ऐसा लिया ना कि मैग्नीशियम प्लस H2O, तो यू शुड आस्क विच H2O, दैट इज कोल्ड, हॉट और वॉट। इफ आई एम सेइंग दैट इज अ कोल्ड H2O, देन यू विल राइट नो रिएक्शन, ठीक है, क्योंकि मैग्नीशियम कोल्ड वाटर के साथ नहीं, वो बॉइलिंग वाटर दैट इज हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है टू गिव हाइड्रोजन गैस। सो दिस इज द रिएक्शन ओवर हियर, दैट इज पे अटेंशन, Mg plus H2O gives you MgOH twice। क्या दे रहा है आपको वो? Mg plus H2O gives you MgOH twice plus H2 गैस। ये आपका रिएक्शन होगा, ठीक है। This is the reaction taking place. Aluminium reacts with steam, same। अब एल्यूमिनियम का भी याद रखना कि एल्यूमिनियम आपका उसके साथ रिएक्ट नहीं करता, किसके साथ? बॉइलिंग वाटर, कोल्ड वाटर के साथ या हॉट वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। एल्यूमिनियम किसके साथ रिएक्ट करेगा? स्टीम के साथ। स्टीम इन द सेंस गैशियस वेपर फॉर्म में, ठीक है। सो रिएक्शन 2Al plus 6H2O gives you 2AlOH whole thrice, that is aluminium hydroxide plus H2। Same way zinc does not reacts with hot water and cold water, it reacts with steam। Zn plus H2O gives you ZnO। यहाँ पे देखो वो ऑक्साइड बना रहा है, हाइड्रोक्साइड नहीं, ठीक है, याद रखना। एज स्टेटमेंट आगे पढ़ा था कि सारे मेटल ऑक्साइड्स नहीं बनाते हैं, कुछ हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं और कुछ सिर्फ ऑक्साइड बनाते हैं पानी के साथ रिएक्ट करने के बाद। नेक्स्ट आयरन रिएक्ट्स विथ रेड हॉट आयरन
रेड हॉट आयरन रिएक्ट्स विथ स्टीम टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस। अब रेड हॉट क्या है वो मैं आगे आपको स्लाइड में बताती हूँ। रिएक्शन देखो, 3Fe प्लस H2O गिव्स यू Fe3O4 प्लस 4H2। ठीक है। कॉपर किसके साथ रिएक्ट करेगा? कॉपर डज नॉट रिएक्ट विथ आइदर विथ स्टीम, आइदर विथ कोल्ड वाटर, आइदर विथ हॉट वाटर, इवन एट रेड हॉट कंडीशन। सो Cu प्लस H2O, नो रिएक्शन। सो आई होप आपको क्लियर्ड है कि मेटल्स अपनी रिएक्टिविटी सीरीज के बेसिस पे, नेचर के बेसिस पे सबके साथ रिएक्ट करता है। ऐसा नहीं कि हर एक एलिमेंट रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट करेगा, हर एक मेटल पानी कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, हर एक मेटल ऑक्सीजन के साथ सेम वे से रिएक्ट करेगा, नहीं। मैंने आपको दिखाया, आपको सोडियम और पोटेशियम तुरंत रिएक्ट करेगा रूम टेम्परेचर पे, वेरेस आप आयरन को अगर रिएक्ट करोगे ऑक्सीजन के साथ वो तो इजीली बर्न नहीं होगा, इट रिक्वायर्स अ वेरी हाई टेम्परेचर। सेम वे जिंक रिक्वायर्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग हीटिंग टू फॉर्म जिंक ऑक्साइड, सो रिमेंबर दैट। ओके, नाउ ये है रेड हॉट कंडीशन। एज आई सेड यू, आयरन रिएक्ट्स एट रेड हॉट कंडीशन, सो दिस इज द रेड हॉट कंडीशन। ऐसा जब कंडीशन होगा, आपने ऑब्जर्व किया होगा, अगर कभी देखा होगा तो आयरन को ऐसे हीट करेंगे तब वो पानी स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा टू फॉर्म योर आयरन ऑक्साइड। अगर ऐसे कंडीशन नहीं हुआ, सिंपल जो आपका आयरन है और उसमें पानी डाल दो, क्या रिएक्शन होता है? नहीं, कोई रिएक्शन नहीं होता। बट आयरन को अच्छे से हीट करते हैं और पानी के साथ स्टीम के साथ रिएक्ट करोगे तो वो रिएक्शन करेगा। स्टीम ऑल्सो हैज सम सॉर्ट ऑफ वाटर वेपर। सो व्हाट इज द रिजल्ट ऑब्टेन आफ्टर दैट रिएक्शंस ऑफ वाटर? दैट वी सी दैट सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट्स विद कोल्ड वाटर violently. Calcium reacts less violently with cold water. So calcium start floating because the bubbles of hydrogen gas formed stick to the surface of the metal, as I have discussed to you. Magnesium reacts with boiling water. Same way magnesium का भी metal क्या होता है, वो bubbles के साथ float करना, stick होना start करता है, as same as of calcium. Metals like aluminium, iron and zinc do not react either with cold water or with hot water, but they react with steam to form metal oxides and hydrogen. Okay, देखो ये मैंने आपको बताया था सोडियम, पहले वाला जो एक स्लाइड इसी में पिक्चर दिखाया था, दैट सोडियम ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट कर रहा है और ये सोडियम पानी के साथ कैसे रिएक्ट कर रहा है, तुरंत एक्सप्लोसिव देखो कैसे होता है। ठीक है, सेम वही ये वाला स्लाइड देखो कि जिंक कैसे रिएक्ट कर रहा है। जिंक लिया है, उसको स्टीम के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, वाटर सोक्ड ऑन अ कॉटन वॉल, उसको हीट करे तो जिंक मेटल क्या करे, देखो यहाँ पे कॉटन वूल रखा और उसको रखा और फिर धीरे धीरे उसको हीट किया तो जिंक का ये जो ऑक्साइड है वो रिएक्ट करना स्टार्ट किया और जिंक ऑक्साइड बनाना स्टार्ट हुआ। देखो यहाँ पे देखो अच्छे से, जिंक को हीट करे, जिंक का मेटल है उसको हीट कर रहे हैं तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, वो स्टीम बन रहा है ना, वो स्टीम उसके साथ रिएक्ट कर रहा है और जिंक ऑक्साइड बना रहा है। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू, सो स्टार्ट मेकिंग द नोट्स एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट आप मुझसे पूछो एंड रिएक्शंस अच्छे से याद रखो। ठीक है, कि मैग्नीशियम यहाँ पे कैसे रिएक्ट कर रहा है वो भी आप याद रखो कि मैग्नीशियम कैसे रिएक्ट कर रहा है, उसका रिएक्शन देखो, मैग्नीशियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है कि हॉट वाटर के साथ। ओके, मेक डाउन द नोट्स एंड मेक द थिंग क्लियर्ड, and if you have any doubt you can ask me. Thank you.